Namaskar friends, hi, this is Tanmay Saikia and welcome to the series that we are going to. In this series, the name of the series is Educational Astrology and today we are in part 5. In last 4 parts, we were discussing scenario about the different streams that you need to choose after class 10 and 12 and in last 2 parts we have to discuss what are the conditions that are required to have a good career in the field of engineering and medical. ये सीरीज़ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को या आप लोग चाहे आप लोग स्टूडेंट हो या आप लोग पेरेंट्स हो, आप लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपके जो बच्चे हैं वो कौन सा स्ट्रीम में जाए क्लास 10 या 12 के बाद, क्योंकि हमेशा यहाँ पे अगर कोई रॉन्ग चॉइस हो गया तो द होल लाइफ विल सफ़र. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी ऑफ अस टू नो एंड टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन before putting anybody into any stream, especially after class 10 and 12. So in that series, we were discussing in part 3 of our last video about what are the conditions that are required for getting admission and to become successful in engineering. In the next video, that is video number 4, we were discussing about the astrological requirements that are necessary for one to become successful in medical profession. And in the same line, today we are in part number 5 and we will be discussing about two very popular and very in-trend streams of today's age, that is commerce and management. So in today's video, what we are going to discuss is that under which circumstances of your kundli or of your horoscope, you will be 100% sure that you will do well in commerce or in business management field. जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल कॉमर्स और मैनेजमेंट का ही ज़माना है. ये जो ज़माना आजकल चल रहा है ये ज़माना पूरा का पूरा बिजनेस ओरिएंटेड ज़माना है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़के क्लास 10 या 12 के बाद हमेशा कॉमर्स या मैनेजमेंट फील्ड में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक कारण तो यहाँ है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है. इंडिया इज़ फ्लरिशिंग, इकोनॉमिकली इट इज़ प्रॉस्परिंग, मेनी कंपनीज आर कमिंग एंड देयर आर मेनी ओपनिंग. जॉब मार्केट बहुत ही वाइड हो गया है कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड का जो होते हैं उन लोग के लिए. सो दैट परहैप्स प्रोवोकेट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर आइदर कॉमर्स और मैनेजमेंट एज ए कैरियर आफ्टर क्लास 12 मेनली. हाउएवर we need to know that what we wish the God may not have planned it for us. Therefore, it is not our wish that will work at the long run, but it is the wish of the God, which He has already written in our birth chart when we took birth, that what is His ultimate plan for us. So, we may do anything. By doing anything, we may get admission into commerce या management. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉमर्स, आपका अगर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप कॉमर्स या मैनेजमेंट पढ़े तो बहुत ज़बरदस्ती करके आपको एडमिशन भी मिल जाएगा. और एक बार अगर एडमिशन मिल गया तो हो सकता है कि रिजल्ट भले ही कम मार्क मिले, आप पास भी कर जाएंगे, लेकिन एक सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर आप ये फील्ड के लिए नहीं बने हुए हैं तो आप आगे जाके इनमें आप ना तो आपका कैरियर होगा और अगर कहीं पे कैरियर हो भी गया तो वो कैरियर नहीं होगा जो कैरियर के लिए आपने ये कोर्स चूज़ किया था. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इफ़ योर कुंडली और हॉरोस्कोप डज नॉट सपोर्ट you studying commerce and management, you will not get admission. You may get admission, you may pass also, you may get a certificate of BCom, BBA, MBA, whatever it is. However, you will certainly not have a very successful career in any of these things. आपका career will not be there will be no career progress, and ultimately you will be frustrated, and that may lead to depression and many other things. Therefore, what I am trying to do in this particular series, that in every part I am taking one subject and I am trying to make you understand that please look at your kundli, look at your horoscope, and there are some conditions. If these conditions are fulfilled in your horoscope, then please make an informed choice, and there is 100% guarantee of being successful in that particular career. Now today we are discussing commerce and management. So we will be discussing it purely from the point of view of astrology. जो हम लोग का पुराने ऋषि मुनियों ने जो लिख के गया है, वेदों में जो मेंशन किया हुआ है, जो आजकल कोई पढ़ता नहीं है और इसीलिए आउट ऑफ 150% का डिसीजन गलत हो जाता है. तो ये जो है ये पूरा का पूरा हम लोग का जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसी के आधार पर मैं करियर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि और मैं ये
आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये अगर आप मैच कर पाएंगे तो ही आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, और अगर आपका चीज़ मैच हो गया तो आपका एक अच्छा लाइफ कॉमर्शियल मैनेजमेंट में बन जाएगा। नाउ पहला चीज़ है कि कंडीशन नंबर 1 लग्न। लग्न यानी कि ये एक कुंडली का चार्ट है। जिन लोगों को कुंडली या हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उनको पता है कि ये जो पहला हाउस है इनको लग्न बोलता है। तो ये जो लग्न होते हैं ये पहला कंडीशन है कि लग्न शुड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि लग्न का एक डिग्री होता है, ये डिग्री 10 से 22 का अंदर अगर होते हैं देन वी कंसिडर दैट लग्न इज स्ट्रॉन्ग। Second condition is that Lagna Lord. Lagna Lord means that if you see there, I have written some number in red color. These are not the number of the houses, although this is a mesh Lagna. Therefore, here the house number and the Rashi number are same. But ideally, these red color figures they are mentioning the Rashi. So this is 1 means your Lagna is in Rashi number 1. So Rashi number 1 means Mars. Mars means मंगल। तो आपका जो लग्न का अधिपति है या लग्न लॉर्ड है ये आपका हो गया मेष लग्न का अधिपति हो गया आपका मार्स या मंगल। तो ये कुंडली में आपको देखना है कि आपका कुंडली में जो मंगल है वो बलवान है या नहीं है। इज मार्स स्ट्रॉन्ग और वीक योर कुंडली। सो लेट्स फाइंड आउट वेयर मार्स इज। MAR yes. So your Mars is in house number 8. In this house you are seeing Mars and the degree is 16 degree. So how we will know that this is strong or weak? Simply by looking at this step in which Rashi it is sitting. You are seeing here 8 is written. 8 is what? 8 is राशि नंबर 8 दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का अधिपति भी मंगल ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के कि आपका जो लग्न का जो अधिपति है ये स्व राशि यानी कि अपना राशि में ही बैठा है, जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। तो यहाँ पे लग्न लॉर्ड जो है वो भी आपके लिए शुभ है। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि कारका प्लैनेट। कारका प्लैनेट मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज किए हैं ये सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा प्लैनेट है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विच आर द प्लैनेट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। याद रखिए कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो ये दोनों फील्ड के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो होते हैं, एक होता है शनि या सैटर्न और दूसरा होता है सन या सूर्य। इसके अलावा भी क्योंकि मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों में बुद्धि की ज़रूरत होते हैं, कैलकुलेशंस का ज़रूरत होते हैं, अकाउंट्स का ज़रूरत होते हैं और कम्युनिकेशन का ज़रूरत होते हैं। तो इसीलिए बुध यानी कि मरकरी भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और एक प्लैनेट जो स्पेशली मैनेजमेंट में ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में जो लोग पढ़ते हैं वो मेनली मैनेजरियल रोल में जाते हैं, और मैनेजरियल रोल में जब जाते हैं तब बहुत चीज़ जो कि एस्थेटिक्स वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनका उसका बॉडी लैंग्वेज है या उनका ड्रेसअप कैसा है, उनका सेंस ऑफ एस्थेटिक्स कैसे है, ये सब जो मैटर करता है ये वेनस या शुक्र के अंदर आते हैं। तो और दो प्लैनेट जो इम्पोर्टेंट है सूर्य और सैटर्न मेन है, इनके अलावा भी ये दो लाइन के लिए और दो प्लैनेट को हमको देखना है, वो है एक है बुध या मरकरी और दूसरा है शुक्र या वेनस। तो आप देखते हैं एक एक करके यहाँ पे ये कुंडली में कैसा है। ये कुंडली में हम देखते हैं पहले सूर्य। सूर्य तो लग्न में ही बैठा हुआ है, तो सूर्य शुभ होना ही है, बिकॉज जो भी प्लैनेट लग्न में या हाउस नंबर 1 में बैठा हुआ है वो हमेशा शुभ ही होता है। तो यहाँ पे सूर्य इस कुंडली के लिए हमेशा शुभ है। अब देखते हैं दूसरा प्लैनेट, मैंने बोला था कि शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न का पोजीशन देखते हैं कहाँ है सैटर्न। सैटर्न है हाउस नंबर 5। अब हमको समझना है कि हाउस नंबर 5 में जो सैटर्न है ये अच्छा है या बुरा है। हाउस नंबर 5 जो है ये आपका राशि नंबर 5 में बैठा हुआ है। राशि नंबर 5 क्या है? लियो यानी कि सिंह राशि है। सिंह राशि का जो अधिपति है वो है सूर्य। इसका मतलब ये हो गया कि जो शनि है ये शनि सूर्य जो कि लग्न का अधिपति है इनका राशि में बैठा हुआ है, और इसीलिए लग्न का अधिपति का जो राशि होता है वो इन कुंडली में अच्छा होता है। दूसरा एक कंडीशन ये है कि ये जो हाउस है हाउस नंबर 5 बोलते हैं इसको, ये हाउस एजुकेशन का हाउस भी है। तो एजुकेशन का हाउस में जब सैटर्न बैठ रहा है यानी कि शनि बैठ रहा है, इसका मतलब ये है कि सोने पे सुहागा, मतलब जो विद्या का जो स्थान है उसी में ही जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए शनि ये यहाँ पे ही बैठा हुआ है। तो ये इस कुंडली के लिए शनि बहुत ही शुभ है। इसके बाद आते हैं बुध। बुध कहाँ पे है? मरकरी हाउस नंबर 2 में है। अब हाउस नंबर 2 जो है ये इस कुंडली में राशि नंबर 2 में है, मतलब राशि नंबर 2 है टोरस यानी कि वृषभ, और वृषभ राशि का गुरु या ओनर या लॉर्ड है शुक्र यानी कि वेनस। तो इसका मतलब यह है कि जो मरकरी है ये बैठा हुआ है वेनस का राशि में। और अगर आप देखेंगे कि वेनस कहाँ पे है,
इन कुंडली में आपका वेनस आपको मिलेगा हाउस नंबर 3 में। हाउस नंबर 3 जो है यहाँ पे वेनस बैठा हुआ है, और हाउस नंबर 3 मतलब कौन सा राशि हो गया, राशि नंबर 3 मतलब कौन सा राशि है, जेमिनाई मतलब मिथुन, और मिथुन राशि का अधिपति है बुध। यानी कि ये आप अगर देखें तो बुध शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, जबकि शुक्र बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो ये एक राशि परिवर्तन का राजयोग है, जो कि दोनों के लिए, बुध के लिए भी शुभ है और शुक्र के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा और भी सोने के सुहागा ये है कि ये जो दूसरा राशि जहाँ पे बुध बैठा हुआ है, ये दूसरा राशि को बोलते हैं कि दिस इज द हाउस ऑफ स्पीच, मतलब हम जो बोलते हैं ये बोलने का अच्छा या बुरा होना, ये जो हाउस नंबर 2 है उससे भी देखा जाता है। तो यहाँ पे और जो बुध जो प्लेनेट है, ये बुध प्लेनेट बुद्धि और जो वाणी या बुद्धि, ये दोनों का स्वामी है या लॉर्ड है बुध। तो बुध जो कि वाणी का स्वामी है, वो खुद वाणी का जो स्थान है, जो हाउस है, हाउस ऑफ वाणी स्थान, वहाँ पे ही बैठा हुआ है। तो इससे ज़्यादा अच्छा और बुध के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि बुध हाउस नंबर 2 में बैठा हुआ है। तो हमने देखा कि जो 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट था, सूर्य भी शुभ है, शनि भी शुभ है, बुध भी अच्छा है, वेनस भी अच्छा है। तो ये 3 नंबर कंडीशन भी हम लोग का कारका प्लैनेट का अच्छा है। नेक्स्ट है PAC ऑफ 3। ये तीनों के पोजीशन कैसा है, एस्पेक्ट कैसा है और कंजुगेशन कैसा है। पोजीशन मतलब जहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक ठाक पोजीशन में बैठा हुआ है या शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, इसको पोजीशन बोलता है। ए मतलब एस्पेक्ट, जिसको हिंदी में बोलता है दृष्टि। तो इन लोगों के ऊपर पापी ग्रह का तो कहीं दृष्टि नहीं पड़ा है, वो देखना है। और कंजुगेशन मतलब जहाँ पे 2 प्लैनेट एक साथ बैठा हुआ है, क्या वो 2 प्लैनेट आपस में उनका शत्रुता है या मित्रता है, ये हम लोग यहाँ से देखा है। तो ये कुंडली को हमने ऑलरेडी देख चुका है कि यहाँ पे हर प्लैनेट का जो पोजीशन है ये बहुत ही अच्छा है। इनका जो एस्पेक्ट है, जो जैसे आप मान लीजिए कि ये जो आपका यहाँ पे जो किसी भी आप मान लीजिए कि जो आपका मंगल है, यहाँ पे मंगल का दृष्टि यहाँ पे बुध का ऊपर पड़ रहा है। मंगल अपना स्वराशि में है, बुध अपना स्वराशि में है, तो इनका आपस में अच्छा दृष्टि है। वैसे आप देख लीजिए कि जो यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य हालांकि यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो तुला राशि का अगेंस्ट पे सूर्य है जो कि लॉर्ड है। ये जो शनि है, इन पे बृहस्पति जो गुरु है, इनका प्रभाव है। तो इनमें जो एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट भी यहाँ पे कोई गलत नहीं है। कंजुगेशन यहाँ पे कहीं पे भी हमको कंजुगेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे 2 प्लैनेट एक साथ बैठा हुआ है। तो ये जो तीसरा कंडीशन है, ये भी यहाँ पे ठीक ठाक है। चौथा, 5वां है कि ये जो प्लैनेट है, इनके आपस में शत्रुता या मित्रता या इनका आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं, कनेक्शन ऑफ कारका प्लैनेट। जैसे हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे बुध और शुक्र, इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है कि बुध का राशि में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र का राशि पे बुध बैठा हुआ है। तो दोनों में राशि परिवर्तन का योग है, तो दोनों में कनेक्शन है। सिमिलरली अगर आप देखें, जो आपका जो मान लीजिए कि ये जो आपका शनि है, अब ये शनि का देखिए, ये शनि जो है, ये शनि का आप अगर देखेंगे कि ये शनि के साथ इनका जो है, इनका भी जो दृष्टि है, ये यहाँ पे बहुत ही आश्चर्य। इसका शनि का 3 दृष्टि होते हैं, 3rd, 7 और 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब शनि का जो 10वां या 10th जो एस्पेक्ट या दृष्टि है, ये बुध का ऊपर पड़ रहा है। मतलब बुध और शनि भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये 5 नंबर में भी जो कंडीशन है कि कनेक्शन ऑफ द प्लैनेट, ये भी ये चैप्टर में उभर के आ रहा है। उसी हिसाब से कारका हाउसेस, अगर आपको कॉमर्स या मैनेजमेंट में अगर आपको अच्छा रिजल्ट, मतलब कैरियर में अगर आपको प्रोग्रेस करना है, तो आपका ये जो हाउस है, हाउस नंबर 6 बोलते हैं हम, ये हाउस नंबर 6 और ये जो हाउस नंबर 11 है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है। 11 हाउस जो है, ये आय स्थान है। ये डिटरमाइन करते हैं कि आप जब पढ़ लिख के नौकरी करेंगे तो आपका वो नौकरी से क्या आपका आय होगा या नहीं होगा। तो ये स्थान शुभ होना चाहिए। और ये जो हाउस नंबर 6 है, ये हाउस नंबर 6 भी कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए बहुत ही शुभ होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि हाउस नंबर 6 जो है, ये 6 नंबर राशि में है, यानी कि 6 नंबर राशि हो गया आपका वर्गो, यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि जो है, ये बुध का ही राशि होते हैं। तो बुध का राशि, और हमने बोला कि 4 कारका प्लैनेट में बुध भी एक प्लैनेट है, तो बुध का अपना राशि है ये हाउस नंबर 6। तो इसीलिए ये कुंडली में हाउस नंबर 6 बहुत ही अच्छा है। सिमिलरली आप अगर देखेंगे कि ये हाउस नंबर 11, यहाँ पे राशि है 11 नंबर राशि, जो कि कुंभ राशि होते हैं, यानी कि एक्वेरियस, जिनका मालिक होते हैं सैटर्न यानी कि शनि।
तो यहाँ पे हमने देखा कि शनि इन कुंडली के लिए अच्छा है। तो शनि जब अच्छा होगा तो ये जो आय स्थान है, ये आय स्थान भी इन कुंडली के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के, और इसके अलावा भी हम लोग को D9 एक इसको बोलता है नवांश, और D24 एक चार्ट होता है जो कि स्पेशली एजुकेशन का सूक्ष्म विश्लेषण के लिए जरूरी होता है। ये दोनों चार्ट भी हमको देखना पड़ता है। और उसके बाद और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब एडमिशन का टाइम हो या नौकरी का टाइम हो या प्रमोशन का टाइम हो, तो ये जो जातक या जातिका जिनका भी कुंडली हम देख रहे हैं, उनका कौन सा प्लेनेट का महादशा और अंतर्दशा चल रहा है वो भी देखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एडमिशन का टाइम में या जो भी लैंडमार्क पीरियड है, जैसे एडमिशन, नौकरी, प्रमोशन, ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं लोगों को करियर में, वहाँ पे अगर ये जो हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 9 और हाउस नंबर 11 इनका जो अधिपति है, उनका अगर महादशा या अंतर्दशा अगर उस टाइम पे चल रहा है, इफ़ एट दैट टाइम महादशा और अंतर्दशा ऑफ द लॉर्ड ऑफ हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 9 एंड हाउस नंबर 11 इफ़ दे आर गोइंग ऑन, और इफ़ महादशा ऑफ जुपिटर यानी कि बृहस्पति यानी कि गुरु या मार्करी यानी कि बुध, इनका अगर दशा, महादशा, अंतर्दशा अगर जा रहा है, तो ये जो समय है वो समय भी जातक या जातिका का जो भी पड़ाव है, चाहे एडमिशन का पड़ाव हो, चाहे नौकरी ज्वाइन करने का पड़ाव हो, या चाहे प्रमोशन का टाइम हो, उन टाइम पे अगर ये जो प्लेनेट मैंने बोला, हाउस नंबर 5, 9 और 11 का अधिपति और बृहस्पति, जुपिटर और बुध, इनका अगर कोई दशा या अंतर्दशा चल रहा है तो ये बहुत ही शुभ पीरियड है। तो ये कुल मिला के अगर आप अपना कुंडली में ये मैच कर रहा है, तो तन्मय संज्ञा का बात आप मान लीजिए, आप या आपका अगर पुत्र या पुत्री के लिए आप कॉमर्स या मैनेजमेंट का बारे में सोच रहा है, तो आप 100% यू गो अहेड, नॉर ही और शी will success in getting admission, but they will get a very very good job also, and not only getting a job, they will prosper in that job, they will climb in the ladder of success, and they will reach a very very high position, and they will bring money and fame to themselves and their family also. इसलिए मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि जब भी आप अपना बच्चे या आप अगर स्टूडेंट हो, आप खुद जब आपका एडमिशन या कोई नौकरी ऐसा अगर जब इवेंट आता है, तो काइंडली आप एक बार अपना कुंडली किसी पढ़ा लिखा जो कि कैरियर एस्ट्रोलॉजर है, एजुकेशन एस्ट्रोलॉजर है, उनसे दिखवा लीजिए। क्योंकि ये कोई कैरियर काउंसलर जो कि आजकल हर गली मोहल्ला में मिल जाएगा आपको, ऐसा कैरियर काउंसलर नहीं है। वी प्रेडिक्ट व्हाट द गॉड हैज़ रिटन फॉर यू एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। वी आर नॉट creating anything, we are just giving you that this is the photograph which the God has taken at the very moment when you were born. आपका जब जन्म हुआ था उस टाइम पे पूरा विश्व ब्रह्मांड में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे था, इसका एक स्नैपशॉट ये है, फोटोग्राफ है। और ये अगर गॉड ने लिया है तो इसको पढ़ना जिनको आता है उनके पास आप जाइए, और आप अगर इसके लिए बने हैं तो यू गो ahead with your career. I wish you all the success. Thank you. We will meet in our next video with another important subject which is trending these days is, yes, you have get it right, journalism and mass communication. तो मुझे आइडिया दीजिए इसके लिए। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, share it with your friends so that not only you but many other people can also take the benefit from this, the knowledge which I try to disseminate to you through this video. Stay safe, be happy.